Hello and welcome to Remel's Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 11th October 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article is going to be a really important one because it is about India becoming the world's largest producer of sugar. So today's article will also try to learn about the basics of the sugarcane crop because it is one of the most important crops of India along with rice, wheat. So the news says that India has emerged as the world's largest producer and consumer of sugar as well as world's second largest exporter of sugar by producing more than 5,000 lakh metric ton sugarcane. So this can be important from a GSP product government policies point of view and also from GSP poetry, as I told you, from major crops point of view, and this has been taken from the Business Today. So now about the current context, as I was saying, now this is really a good news because initially it used to be Brazil, but currently India has emerged as the world's largest producer and consumer of sugarcane and world's second largest exporter due to the record production of more than 5,000 lakh metric tons of sugarcane. So we'll look at the background, we'll look at the conditions which has actually led to this achievement by India. So the reasons for the good production of sugar are, number one, यहाँ पे बताया गया about the impressive sugar season के बारे में. तो देखिए sugar cane you should know कि it is a खरीफ crop. ठीक है, it is a खरीफ crop है and basically autumn जो season है, autumn is a suitable season or time for planting sugar cane and is done in the long stretch of October. ठीक है, तो ये जो period है, so September से October, now this has been quite impressive this year. So all records of sugar cane production and sugar production and sugar exports, cane procured and ethanol production was made during this season. Right, and about the high exports, the exports were the highest at about 109.8 lakh metric ton, which helped India in earning a foreign currency of about 14,000 crore of rupees. ठीक है, तो यहाँ पे we have been successful in exporting 109.8 LMT of sugarcane, that is lakh metric ton, which helped India in earning a foreign currency of about 40,000 crores. And there are also a number of Indian government initiatives which have helped in such achievement. तो देखिए पहले क्या था, in the 5 years, अगर आप देखोगे 2018 से 19 के टाइम में India actually used to be in the case of financial distress. ठीक है, बट ये जो टाइमली गवर्नमेंट इंटरवेंशंस है एंड जो इनिशिएटिव्स आर, नाउ दिस हैज हेल्प इन इंडिया बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन द ईयर 2021 to 22. So these 5 years were really important because a number of policies and initiatives were taken by the Union government. उसके बाद यहाँ पे बात किया गया अबाउट द इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम. सो देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको शायद पता होगा कि इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स. सो टू डिक्रीज आवर इंपोर्ट बिल, ठीक है, हम लोग का जो इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आता है बिकॉज हमें जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर, स्पेशली इन दी ओपेक कंट्रीज फॉर आवर crude oil. तो देखिए, so India, because it imports 85% of its crude oil requirements, so to decrease our import bill and to decrease our foreign dependence, we mix ethanol with petrol. हम क्या करते हैं, जो पेट्रोल पंप होता है ना, पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल आता है उसमें हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं. तो इससे इंजन में इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट आप कह सकते हो द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बेसिकली रिमेन्स द सेम. सो इथेनॉल क्या, इथेनॉल इज एन अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है, ठीक है. इट इज ऑल्सो अ फ्यूल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, ठीक है, and also molasses. So currently petrol that we use in a regular vehicle that we use, it has got 10% blended ethanol. ठीक है, currently अगर आप देखोगे यहाँ पे 10% blended है, but we are actually targeting, आप यहाँ पे देख सकते हैं, we are targeting 20% ethanol blending by 2025. ठीक है, so you can see the national policy on biofuels 2018 provides an indicative target of 20% ethanol blending under the ethanol blended petrol program by 2025. Now this is our target. अब इसी target को meet करने के लिए we actually focus on a huge production of sugar. ठीक है, and also about the fair and remunerative prices. So basically अब देखिए क्या होता है, FRP is the minimum price that sugar mills have to pay to sugar cane farmers for procurement of sugar cane. अब आपको पता होगा कि in number of crops के लिए, for example rice and wheat के लिए, for the procurement by the government, the farmers are paid the MSP, that is the minimum support price. यहाँ पे भी the mill owners जो है, the sugar mills जो होते हैं, now they also have to pay some minimum price which is known as the FRP, that is the fair and remunerative price. So this is basically determined on the basis of recommendations of the Commission for Agricultural Cost and Prices, and
आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, एंड फाइनली डिस्कस किया जाता है कि दिस लाइक सच अमाउंट विल बी दी FRP, दैट इज द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिस दाम पर जो शुगर केन है उसे प्रोक्योर किया जाएगा फ्रॉम द फार्मर्स। और इसके बाद बताया गया अबाउट दी स्टेट एडवाइस प्राइसेस। तो बेसिकली ये जो FRP SRP को बेसिकली यहाँ पे चेंज भी किया जा सकता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑल्दो द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द FRP, द स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कि उनका द स्टेट गवर्नमेंट फील्स दैट देयर फार्मर्स आर नॉट बीइंग पेड एडिक्वेटली, देन इन दैट केस यहाँ पे क्या कर सकता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज है, दे कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्राइसेस। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द स्टेट एडवाइस प्राइस व्हिच द शुगर मिल हैज टू पे द फार्मर। तो अगर मान लीजिए जो FRP है उसे इंक्रीज कर देता है स्टेट, तो उस स्टेट में जितना भी सारा शुगर मिल का ओनर्स है, नाउ दे हैव टू पे दैट पर्टिकुलर प्राइस टू द फार्मर्स इन ऑर्डर टू प्रोक्योर दैट अमाउंट ऑफ शुगर केन। So let's look at the state of about the current scenario of the sugar cane or the sugar industry in India. So you should know that sugar industry, अब देखिए sugar हम produce करते हैं from sugar cane because it is based on agriculture, so it is an agro-based industry. So sugar cane is an important agro-based industry of India which impacts the rural livelihood. देखिए 50 million जो farmers हैं, ठीक है, 50 million rural farmers of India, now they are associated directly with sugar cane production only. ठीक है, now they farm, they grow sugar cane, and also 5 lakh workers जो है they directly work in this particular sugar mills that produces sugar. तो इसी वजह से ये जो current feat है या जो achievement है of India in becoming the world's largest producer of sugar and also the second largest exporter of sugar, now this particular feat and achievement is going to help this particular farmers and workers. उसके बाद आप देख सकते हो कि शुगर इंडस्ट्री जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर कॉटन। तो इंडिया के केस में द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज कॉटन और उसके बाद ही आता है शुगर केन। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखिए शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी पाया जाता है, ये साउदर्न इंडिया में भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, एंड नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया स्पीकिंग ऑन विद रेस्पेक्ट टू दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो पार्ट है वो से नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ पे स्टेट्स मिलेगा आपको यूपी, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब इन द नॉर्थ, जहाँ पे विच आर फेमस फॉर द शुगर केन प्रोडक्शन, एंड ऑल्सो इन द साउथ इफ यू सी दैट इज द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यू विल फाइंड प्लेसेस लाइक द महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे वी ऑल्सो ग्रो शुगर केन। अब देखिए इफ यू लुक एट दिस रीजन दैट इज साउथ जो है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो across the world the region between the tropic of cancer and tropic of capricorn it comes under the tropical climate zone. ठीक है, तो ये जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया because it lies to the south of the tropic of cancer or in the tropical region, so hence it has got the tropical climate. Because the tropical climate is suitable for higher sucrose content. Now this particular higher sucrose content जो है it gives the sugar cane a higher yield per unit area. तो इन southern India के केस में क्या है, the yield जो है ये काफी ज्यादा रहता है as compared to the north India. ठीक है, now about the geographical conditions of India you can be asked in the prelims. So the temperature requirement is between 21 to 27 degrees Celsius because it's a kharif crop, so it requires a hot and humid climate. The rainfall requirement is also high, it is about 75 to 100 centimeter. And about the soil type, it requires a deep rich loamy soil. In the case of India the highest producing states are Maharashtra, UP and Karnataka. So there are also certain challenges that are often faced by the sugarcane industry or the sugarcane or the sugar industry basically. So let's look at the challenges. तो challenges में यहाँ पे पहले बताया गया about the uncertain production output. तो basically देखिए क्या होता है, sugarcane जो है I told you it is one of the significant crops of India, but then again there are other significant crops as well which are food crops हो गया, cash crops हो गया like cotton, oilseed, rice etc. तो sugarcane को कभी-कभी compete करना पड़ता है, जैसे कि महाराष्ट्र के केस में I told you it is the highest producer of sugar, but sometimes it so happens that the concentration is shifted to cotton as well because Maharashtra is also famous for the cotton cultivation, right? तो इसी केस में क्या हो जाता है, जो प्रोडक्शन है ना वो हर साल वो कांस्टेंट नहीं रहता, अगर इस साल ज्यादा है तो नेक्स्ट साल ये कम भी हो सकता है। राइट, तो इसी कारण से क्या हो जाता है, ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, कभी कभी मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं शुगर इंडस्ट्री से हम शुगर अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं, उस केस में क्या हो जाता है, अगर लो डिमांड है ना देन इट विल ऑल्सो बी डेट्रीमेंटल फॉर द शुगर केन फार्मर्स। व्हाई? बिकॉज इट विल लीड टू द फॉल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लो प्राइसेस दे ऑल्सो मे हैव टू सफर इन दैट केस। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अबाउट द लो यील्ड ऑफ शुगर केन। अब इंडिया के केस में जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है ये काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू सम अदर शुगर केन और शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि इंडिया के केस में इट इज ओनली पर हेक्टेयर बस 64.5 टन ही प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू जावा जो कि एक इंडोनेशियन आइलैंड है, वहाँ पे 90 टन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम 1 हेक्टेयर, एंड इन केस ऑफ हवाई 121 टन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम 1 हेक्टेयर।
राइट। उसके बाद लो शुगर रिकवरी रेट। अब द एवरेज रेट ऑफ रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन इन इंडिया इज लेस देन 10%। तो अगर मान लीजिए कि इफ वी हैव 100 kg ऑफ शुगर केन, तो उससे हम बस 10 kg ऑफ शुगर ही हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, इफ यू हैव गॉट 100 kg ऑफ शुगर केन, तो उसमें से बस हम लाइक ओनली 10% ही हम शुगर वहाँ से रिकवर कर सकते हैं, विच इज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू द अदर मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर इंडिया। एंड देन अबाउट दी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखिए, शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत सारा कॉस्ट यहाँ पे हमें लिवाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर केन जो है, इस क्रॉप का भी दाम कभी कभी ज्यादा रहता है। एंड अबाउट inefficient technology which lead to the lower production again, then the uneconomic process of production and heavy excise duty result in the high cost of manufacturing. Okay, so these are the challenges that are faced by the sugar cane or the sugar industry in India. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is again very important. This is about our capital Delhi and it is about the environment of Delhi. ठीक है, तो this article जो है it is will try to learn about certain government initiatives कि किस तरीके से जो एयर क्वालिटी है दिल्ली का, किस तरीके से उसको कंट्रोल में या बेटर करने के लिए ट्राई किया गया है. तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि रिसेंटली द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवाइज्ड ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान. ठीक है, तो एक प्लान है ग्रेडेड एक्शन प्लान, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. नाउ दिस वाज इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, जो पहला स्टेज है इस ग्रैप का, तो ग्रैप का फर्स्ट स्टेज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली एंड द नेशनल कैपिटल रीजन. तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर जीएसपी रिपोर्टेड बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट एंड ऑल्सो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू. तब देखिए, ग्रैप जो है, ग्रैप स्टैंड्स फॉर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान. नाउ दिस इज बेसिकली अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स. देखिए, कुछ मेजर्स है, कुछ इनिशिएटिव्स है जो लिए जाते हैं दैट किक इन टू प्रिवेंट द फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ द एयर क्वालिटी. तो देखिए, ये जो ग्रैप है ना, ये तभी इंप्लाई किया जाता है या ये तभी आप कह सकते हो कि लागू किया जाता है ग्रैप व्हेन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज पुअर. ठीक है, जब ये पुअर हो जाता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ये खराब हो जाता है ना, उस केस में ग्रैप आ जाता है. और ग्रैप इज बेसिकली सम एक्टिविटीज. ठीक है, और ये एक्टिविटीज इसीलिए लाया जाता है ताकि एयर क्वालिटी जो है उसे आप कह सकते हो कि उसे ठीक किया जाए. ठीक है, तो करेंटली स्टेज 1 ऑफ ग्रैप हैज बीन एक्टिवेटेड, और ये जो एक्टिवेशन है दिस हैज बीन डन बिकॉज द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली इट इज करेंटली इन द पुअर कैटेगरी. So recently, the first stage of the revised GRAP was implemented in Delhi and the NCR. तो देखिए, ऑन October 6 यहाँ पे जो पहला स्टेज है ग्रैप का, दिस स्टेज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. ये इम्प्लीमेंट किया गया है क्यों? टू फाइट द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड द एनसीआर रीजन. ठीक है, आफ्टर अ सडन डिप इन एयर क्वालिटी इन द कैपिटल. तो देखिए, व्हाट वी डू इज दैट द गवर्नमेंट ट्राइज टू कीप अ ट्रैक ऑफ द एयर क्वालिटी थ्रू द एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो जब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर हो जाता है ना, दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्शंस इट कम्स इनटू प्ले. ठीक है, सो बिकॉज देयर वाज अ सडन डिप इन द एयर क्वालिटी, सो दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ द ग्रैप वाज इम्प्लीमेंटेड. द ऑर्डर केम आफ्टर दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स डिटेरियोरेटेड टू बी इन द पुअर कैटेगरी रिसेंटली. ठीक है, तो ये चला गया था पुअर कैटेगरी में, और एंड नॉट जस्ट दिल्ली, इट ऑल्सो वाज applied in Gurgaon, Noida and Greater Noida, and then these particular parts are believed to be a part of the NCR, that is the National Capital Region. So, और यहाँ पे क्या हो गया है? Now this all the parts have recorded poor air quality. This is the reason why the first stage of GRAP has been activated. So GRAP is a set of emergency measures, as I told you, that kick in to prevent the further deterioration of the air quality once it reaches a certain threshold. तो stage 1 जो है, ये stage 1 तब activate किया जाता है when the AQI, that is the air quality index, is in the poor category. और poor कब होता है? जब index 201 से लेके 300 तक होता है. हम देखेंगे about the rankings of the air quality index. So let's learn about GRAP, this Graded Response Action Plan. Now you should know the Supreme Court of India. Now the Supreme Court of India is quite active in in learning or being aware about the air quality of Delhi, because the Supreme Court, you will find they are taking a number of initiatives. They have been intervened a number of times for number of policies. तो आपको पता होना चाहिए the Supreme Court is really concerned the air quality of Delhi. तो ये सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे क्या किया था, एक सबमिट किया गया था जो CPCB है, दैट इज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है. नाउ दे हैव सबमिटेड अ लिस्ट ऑफ मेजर्स टू एड्रेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट इन जनवरी 2016. तो जनवरी 2016 में क्या किया था, जो ये CPCB है, जो ये बोर्ड है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नाउ दे हैव सबमिटेड अ लिस्ट ऑफ मेजर्स. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा है कि अगर एयर क्वालिटी खराब हो जाता है, वी विल टेक सो एंड सो एक्शंस. अब ये जो सो एंड सो एक्शंस है ना, नाउ दे हैव बीन लिस्टेड एंड कंबाइंड इनटू द ग्रैप.
ठीक है, तो ये जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है, जो मेजर्स है, दे हैव बीन फॉर्मुलेटेड इनटू द ग्रैप, ठीक है, इसे ग्रैप कहा जाता है, व्हिच आर बेसिकली अ सेट ऑफ एंटी एयर पोल्यूशन मेजर्स व्हिच आर टू बी फॉलोड इन दिल्ली एंड इट्स विसिनिटी अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन। अब ये जो ग्रैप है, दिस ग्रैप इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ दिल्ली और द एनसीआर रीजन। अब ये जो ग्रैप है, दिस इज अप्रूव बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे मतलब सीपीसीबी ने जब सबमिट किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अप्रूव कर दिया है ऑन January 12, 2017, but there has been certain modifications by the union government, by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So after these modifications, it has been finally approved in 2017. The union government set up the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas to consolidate the resources to efficiently tackle the problem of toxic air. ठीक है, तो under the recommendation और under the advice of the Supreme Court, finally यहाँ पे एक कमीशन बनाया गया है by the union government, that is the Commission for Air Quality Management. ठीक है, अब ये Commission for Air Quality Management जो है, it functions in Delhi or the National Capital Region and it basically works in taking up measures to better और आप कह सकते हो टू सेव द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, सो ये जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, दिस बॉडी कोऑर्डिनेट्स विद अदर स्टेट्स, ये बाकी स्टेट्स के साथ भी ये कोऑर्डिनेट करता है टू प्लान एंड एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड हैज बीन एनफोर्सिंग ग्रैप सिंस 2021। तो ये जो ग्रैप है, दिस ग्रैप को एनफोर्स करने का रिस्पांसिबिलिटी किसका है? इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस कमीशन व्हिच इज नोन एज द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब यही एनफोर्स करता है एंड दिस हैज बीन डूइंग सो सिंस द लास्ट ईयर, दैट इज 2021। ठीक है, द ऑर्डर्स एंड द डायरेक्शंस of the Commission for the Air Quality Management will prevail in case of any conflict। अगर मान लीजिए कि दिल्ली का जो गवर्नमेंट है, तो दिल्ली का गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे ऑर्डर देता है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, और अगर उसी बेसिस पर अगर मान लीजिए द CAQM has also given certain orders इस केस में, लेकिन अगर ऐसा कुछ कंफ्लिक्ट होता है तो दिल्ली गवर्नमेंट का बात यहाँ पे नहीं सुना जाएगा। द ऑर्डर्स ऑफ द CAQM will only prevail। ठीक है, नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते दिस हैज गॉट हायर प्रायोरिटी देन द स्टेट गवर्नमेंट। The Commission for Air Quality Management relies on air quality and meteorological forecast by the Indian Institute of Tropical Meteorology and the Indian Meteorological Department for implementing various stages of the action plan। अब ये जो प्लान है, there is this action plan, there is the GRAP जो है। अब GRAP को आपको you should know that this can be preemptive in nature as well। प्रिएम्प्टिव मतलब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने से पहले भी हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस या बेस्ड ऑन द फोरकास्ट व्हिच आर मेड बाय द IITM एंड द IMD, तो ये जब भी बताते हैं कि द एयर क्वालिटी इंडेक्स मे डिटेरियोरेट, तो उस केस में लेकिन हम यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, दैट इज ग्रैप। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वी विल वेट फॉर द एयर क्वालिटी इंडेक्स टू गेट पोर ओनली देन, ऐसा नहीं, हम उसे पहले भी कर सकते हैं। नाउ आई हैव बीन telling you about this article that in the current context यहाँ पे क्या हुआ है, the first stage of the revised GRAP, ठीक है, GRAP का नहीं, revised GRAP का first stage यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है। तो अंदर the revised plan देखिए क्या होता है, restrictions on the pollution activities will be dependent on the air quality index। तो देखिए पहले क्या था, अगर आप GRAP का बात करोगे, now GRAP was basically activated on the आप कह सकते हो considering only the PM 2.5 and the PM 10 concentration। अब PM मतलब होता है particulate matter which basically indicates microscopic मैटर सस्पेंडेड इन दी एयर और दी वाटर, जब नहीं दिखता है तो ये PM 2.5 एंड PM 10 जो है, नाउ दिस आर ये बेसिकली पॉल्यूटेंट्स है व्हिच कॉजेस द एयर पोल्यूशन। तो इसके बेसिस पर हम ग्रैप को एक्टिवेट करते थे। अभी क्या जो रिवाइज प्लान है ये डिपेंड करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर, व्हिच इज नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द PM 2.5 एंड PM 10, इट आल्सो टेक्स इनटू कंसीडरेशन अदर पॉल्यूटेंट्स सच एज यहाँ पे ओजोन भी हम लेते हैं, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज दिस आर आल्सो पॉल्यूटेंट और प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो इसके बेसिस पर करेंटली हम ग्रैप एक्टिवेट करते हैं। इन द प्रीवियस वर्जन मेजर्स किक्ड इन आफ्टर पोल्यूशन कंसंट्रेशन रीच अ सर्टेन लेवल। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इनिशियली देखिए क्या हो रहा था, ग्रैप जो है ये बस तभी एक्टिवेट किया जाता है when the air quality index is poor or very poor। अभी के केस में लेकिन अगर poor नहीं भी हुआ ना, अगर हमें forecast मिला है, if there have been predictions made कि ये poor होने वाला है, तभी भी we can take it preemptively। preemptive मतलब ये occurrence के पहले ही we can activate the graph।
सो लेट्स सी कि ये ग्रैप किस तरीके से फंक्शन करता है। अब देखिए जो स्टेज 1 है, नाउ स्टेज 1 इज एक्टिवेटेड फॉर पोर एयर क्वालिटी इंडेक्स। पोर हम कब कहते हैं, देखिए इन दिस पर्टिकुलर ये आपका सीपीसीबी का एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो पोर एयर क्वालिटी इंडेक्स हम तब कहते हैं व्हेन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बिटवीन 201 to 300। तो इस केस में हम क्या करते हैं, स्टेज 1 में एक्टिवेट करते हैं। वेरी पोर के केस में जब 301 से लेके 400 तक पहुंच जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब यहां पे पोल्यूशन जब काफी ज्यादा हो जाता है, व्हेन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज वेरी पोर, इस केस में हम स्टेज 2 एक्टिवेट करते हैं ग्रैप का, ठीक है। और यहां पे जब सीवियर हो जाता है, सीवियर देखिए यहां पे सीवियर में भी 2 कैटेगरीज बताया गया है। तो सीवियर अगर मान लीजिए कि 401 से 450 है, ठीक है, तो उस केस में हम स्टेज 3 हम ग्रैप का एक्टिवेट करते हैं। और उससे भी ज्यादा, दैट इज 450 से अगर मान लीजिए कि उससे ज्यादा, इफ इट इज मोर देन 450, देन वी से दैट द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज सीवियर प्लस। तो इस केस में हम जो स्टेज 4 है, हम स्टेज 4 एक्टिवेट करते हैं। we'll look at the actions, we'll look at the measures that we take under each stage। तो स्टेज 1 में देखिए क्या होता है, बेसिकली बैन्स कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज एट स्पेसिफिक साइट। तो बेसिकली यहाँ पे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 201 से 300 पहुंच जाता है ना, उस केस में हम कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज हम बंद कर देते हैं। Then agencies also must make sure that no solid trash is यहाँ पे जितना भी सारा मतलब मान लीजिए कि म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस है, एजेंसीज है, now they should ensure that no solid trash is dumped on open land and is instead taken from designated dump sites only। तो कोई भी ओपन या बैरन लैंड में इस तरीके से no one is going to dump the solid trash। Then openly burning municipal solid trash and biomass will result in severe fines। अगर मान लीजिए कि कोई भी एजेंसी if they are burning it openly, then they will also be subjected to fines। Then roads will be mechanically cleaned and water sprinkled from time to time। तो जितना भी सारा roads वगैरह है उनको mechanically clean किया जाएगा and water sprinkle किया जाएगा for और कह सकते हो to prevent the air quality। And also the agencies and the public must abide by the court ordered restrictions on firecrackers। Now see firecrackers जो है ये दिल्ली के केस में आपको पता होगा कि ऑफन द फायर क्रैकर जो है इसे बैन कर दिया जाता है। तो अभी का टाइम जो है ये दिवाली बस आने ही वाला है, तो उसके पहले ग्रैप को एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर व्हिच हैज बीन टेकन टू प्रिवेंट द एयर क्वालिटी इन टाइम्स ऑफ दिवाली एज वेल। So when the air quality is very poor and when the air quality index is 301 to 400, then the stage 2 of the GRAP will be activated when the roads will be mechanically swept every day and water will be sprayed using dust suppressants at least every other day। So to deter the use of generators, so you should know that when the stage 2 is activated, the power suppliers of Delhi and also the electricity suppliers of the NCR, now they are required to ensure a constant supply of power। Why? Because in stage 2 of the GRAP यहाँ पे क्या किया जाता है, जो यूसेज ऑफ जनरेटर्स है, जनरेटर्स का यूज को डिस्करेज किया जाता है, यहाँ पे द जनरेटर का यूज को अलाउ नहीं किया जाता है। सो दिस पावर अथॉरिटीज शुड एंश्योर अ कांस्टेंट पावर सप्लाई। एंड देन व्हेन द पावर यहाँ पे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स व्हेन इट फर्दर डिटेरियोरेट्स, दैट इज जब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 तक आ जाता है, तो उस टाइम में स्टेज 3 इज एक्टिवेटेड एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑथोरिटीज विल लिवाई डिफरेंट रेट्स ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू एनकरेज ऑफ पीक ट्रैवल। अब ये जो ऑफ पीक ट्रैवल है या ऑफ पीक फेयर्स है, नाउ these are basically cheaper tickets है, ठीक है, for traveling on trains या कोई भी buses that are very less busy, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में every moment में हर टाइम में डिमांड नहीं रहता है, कभी कभी जो less peak hours है ना, तो उसमें जो टिकट का दाम है उसे कम कर दिया जाता है। क्यों? to motivate and to encourage so that the people are motivated to use public transportation so that they are यहाँ पे basically उनका जो अपना vehicles है उन vehicles को वो यूज ना करें, इसीलिए फेयर्स को भी कम कर दिया जाता है। A strict ban will be enforced on all construction activities except ongoing construction of railway। तो मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट एंड हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट विल बी एम्पावर्ड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन BS3। तो BS3 जो यहाँ पे वेरिएंट है, करेंटली अभी BS6 चल रहा है, तो BS3 पेट्रोल एंड BS4 जो डीजल LMVs है, तो उन पे भी बैन लगाया जाता है ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ द स्टेज 3 ग्रैप। एंड फाइनली ड्यूरिंग द स्टेज 4 ग्रैप जब यहाँ पे एक्टिवेट होता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से भी ऊपर चला जाता है, उस केस में एंट्री ऑफ ऑल ट्रक्स एक्सेप्ट दोज कैरिंग एसेंशियल कमोडिटीज विल बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ऑल कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज वुड हैव टू बी स्टॉप्ड। द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स कुड टेक अ कॉल ऑन अलाउइंग पब्लिक, म्युनिसिपल एंड प्राइवेट ऑफिसर्स टू वर्क ऑन 50% स्ट्रेंथ। तो 50% स्ट्रेंथ में इसीलिए अलाउ किया जाता है ऑफिसर्स, ताकि जो लोग हैं वो घर से ही काम करें एंड सो दैट जो अपना व्हीकल्स वगैरह वो कम यूज करें। इसीलिए द पीपल
people are कह सकते हो people are encouraged to work from home only. And additional emergency measures like closing of schools, तो स्कूल को भी बंद कर दिया जाता है in order to prevent the health of the children, and also non-emergency commercial activities and plying of vehicles on the odd even basis. आपको पता होगा दिल्ली के केस में odd even rule लागू किया जाता है when the air quality index is very poor, that is on particular day बस odd numbers are allowed and on other particular days even number cars are only allowed. इस टॉपिक के बेसिस पर जैसे prelims practice question, please answer in the comment section. The next article is about the World Mental Health Day. Okay, so the news says the Oju Welfare Association, which is of Arunachal, in collaboration with the Birds and the Beestalk, they have observed the World Mental Health Day at the OWA premises on Monday. तो we'll learn about this World Mental Health Day. ठीक है, क्या क्या issues है, क्या क्या concerns है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. It can be important from prelims and also from mains GS paper to health point of view. इसके ऊपर कभी ऐसे भी आ सकता है. This has been taken from the Arunachal Times. So as I was saying about this current context, OWA, the association, it has collaborated with the Birds and the Beestalk and observing the World Mental Health Day at the OWA premises on Monday. Now, is back the theme, and the theme is really important. It can be asked in the examination. That is making mental health and well-being for all a global priority. The day is observed on 10th of October every day. This is also important. And what is the objective? It is to raise awareness on mental health and mobilizing efforts to support those experiencing mental health issues. Okay, here also I've given a beautiful picture, तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में. और mental health जो है, mental illness जो है, now when we hear these words, many of us feel a little uncertain or uneasy because we don't understand what it means, right? So perhaps we feel a little shaken because of the images of persons with mental illness we see and hear around us. लेकिन देखिए मेंटल इलनेस कैन टेक मैनी फॉर्म्स. जिस तरीके से फिजिकल इलनेस होता है तो उस तरीके से मेंटल इलनेस का भी बहुत सारा फॉर्म्स है, हम बात करेंगे. तो मेंटल इलनेस आर, आप कह सकते हो ये जो इलनेसेस हैं आर स्टिल फियर्ड एंड मिसअंडरस्टूड बाय मेनी पीपल, बट द फियर कुड डिसअपियर इफ दे जो पीपल इफ दे लर्न मोर अबाउट इट. ठीक है, तो नॉर्मली क्या रहता है, एक सोसाइटी में आप देखिएगा एक तरीके का एक स्टिग्मा रहता है, ठीक है, रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ. सो यू शुड नो द ब्रेन जो है, द ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, सो मेंटल इलनेस जो होता है, इट ऑकर्स व्हेन द ब्रेन जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गन, लाइक द हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, व्हेन दे आर नॉट वर्किंग द वे इट शुड वर्क. ठीक है, तो ब्रेन भी कभी कभी मिसफंक्शन करता है. उस केस में द मेंटल इलनेस जो है क्वाइट नॉर्मल है. ठीक है, सो मेंटल इलनेस फंडामेंटली चेंजेस द वे अ पर्सन थिंक्स और फील्स और एक्ट्स और ही रिएक्ट्स. ठीक है, सो मेंटल इलनेस जो है ना, दिस आर क्वाइट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड है. तो अगर आप देखोगे स्टडीज के हिसाब से 1 in every 4 पर्सन जो है, दे हैव गॉट अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ. कभी डिप्रेशन होता है, कभी कुछ अलग अलग टेंडेंसीज आता है कि नहीं. सो दे रेंज फ्रॉम कॉमन प्रॉब्लम्स सच एज डिप्रेशन, फोबिया, एंग्जाइटी टू सीवियर वन सच एज स्किजोफ्रेनिया होता है एंड बाइपोलर डिसऑर्डर. ठीक है, इट अफेक्ट्स. अब देखिए जो मेंटल हेल्थ है ना, ये ऐसा नहीं है कि बस कोई किसी को मतलब कोई सेगमेंट देख के अफेक्ट करता है. इट कैन अफेक्ट बोथ मेल फीमेल, यंग एंड ओल्ड को अफेक्ट कर सकता है. इट कैन और यहाँ पे मेंटल हेल्थ जो है ना, मेंटल हेल्थ कोई ऐसा नहीं है कि इफ यू हैव मनी यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी. ठीक है, तो ये पुअर एंड रिच किसी को भी अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, आपको पता ही होगा कि सो मेनी एक्टर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन द रिसेंट टाइम्स. ठीक है, ऑब्वियसली दे हैव गॉट मनी, दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, बट दे आर मेंटली वीक और दे हैव गॉट सम इलनेस. ठीक है, तो इसी के बारे में बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द वर्ल्ड, टू सेव द चिल्ड्रन और द अपकमिंग जनरेशंस फ्रॉम सच events. About this World Mental Health Day, it is celebrated every year on October 10th. Now about this World Mental Health Day के बारे में, it was 1st October यहाँ पे observe किया था in 1992 में, and this was done as an activity of the World Federation for Mental Health. This is important. The day provides an opportunity for all stakeholders working on mental health issues to talk about their work. जितना भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गया, ठीक है, and the persons who are basically working towards towards the betterment of the mental health of people. Now they talk about their work and what more needs to be done to make mental health care a reality for people worldwide. So the overall objective, as I told you, is to raise awareness of the mental health issues around the world and to mobilize efforts in support of mental health.
ठीक है. Now there are certain determinants of mental health. For example, यहाँ पे multiple social, psychological and biological factors जो है ना it might basically determine the level of mental health of a person at any point in time. तो देखिए mental health जो है ना एक illness जो है या तभी नहीं होता या mental health तभी एक balance में रहता है when the social, the psychological and the biological factors जो है when they are in an equilibrium, when they are in a kind of balance. For example, देखिए जो violence है, the violence and persistent socio-economic pressures are recognized risk to mental health. तो कोई भी जगह पे अगर मान लीजिए war चल रहा है, कोई भी जगह पे disturbances है या violence are not just the wars, violence यहाँ पे कभी कभी families में भी हो जाता है, like the case of domestic violence. So domestic violence also take a toll on the health of the mental health of the child, right? And the clearest evidence is associated with the sexual violence. तो sexual violence के जो victims होते हैं, now they are also like sufferers of the mental illness. So poor mental health is also associated with rapid social change. जब social outlook जो है ये suddenly change हो जाता है या जब working conditions काफ़ी stressful हो या when people are discriminating on the basis of gender or any other aspect, then social exclusion, unhealthy lifestyle, for example drinking, smoking in this case, and also physical ill health and human rights violation के case में. Now there are specific psychological and personality factors that make people vulnerable to mental health problems. इस topic के basis पर there's also a prelims practice question. Please answer in the comment section. The next article is about Gayamong winning a gold medal in Wushu. So Gayamong has been successful in clinching the gold medal in the ongoing National Games of Gujarat. So this has been taken from the Arunachal Times and this can be important for prelims. मैं इसमें नहीं पूछेगा लेकिन ऐसे में आप इनका नाम आप दे सकते हो in the case of the women figures or the women personalities who have been able to stand out from Arunachal Pradesh. तो आप देखोगे करंट कंटेक्स्ट में मर्सी गायमोंग एज यू कैन सी इन द पिक्चर नाउ शी अर्नड अरुणाचल द 4th गोल्ड मेडल इन वुशु सो इन द ऑनगोइंग नेशनल गेम्स इन गुजरात. तो गुजरात के 6 सिटीज में द नेशनल गेम्स आर बीन टेकिंग प्लेस. सो गायमोंग बैग द गोल्ड इन जियांशु एंड क्वानशु ऑल राउंड इवेंट्स. सो दिस आर बेसिकली इवेंट्स ऑफ वुशु विद 9.10 पॉइंट्स आउट ऑफ total 10 points. So this is not important, the name is only important. So second यहाँ पे there silver medal मिला है निक्थबी देवी of Manipur and the third prize यहाँ पे मिला है बुरक्षा दुबे of मध्य प्रदेश. The wushu players of the states are providing मैंने आपको पहले ही बताया था कि how the wushu players have already secured gold medal and silver medal. So the wushu players of Arunachal Pradesh are proving their mettle at the games, winning medals and qualifying for further rounds. Arunachal has so far they have won 4 यहाँ पे जितने भी players थे. Now Arunachal players have been able to secure 4 gold medals and 1 silver medal. That is current जो अभी medal tally है आज के टाइम में it is 5 medals. आगे अपडेट हो सकता है. I'll keep updating about it and its standing at the medal table is likely to improve when it is updated on Monday night. तो जब ये अपडेट हो जाएगा तो स्टेट वाइज जो रैंकिंग है तो अरुणाचल का रैंक काफी आगे आ जाएगा after the ranks will be improved. After the ranks are being updated. So these are the prelims practice questions that I asked in the previous video. Let's look at the answers. So the answers for the questions are यहाँ पे बताया गया था अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव्स रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस. नहीं, वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं. ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन बोथ बाय द प्रेसिडेंट ओनली. एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल यू शुड नो कि इट इज सिचुएटेड इन शिलोंग. लेकिन जो 70th जो रिसेंट मीटिंग हुआ था दैट इज द प्लेनरी जो सेशन हुआ था जहाँ पे बी.डी. मिश्रा रिप्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश, इट हैड टेकन place in Guwahati. So for now that was all from our side for this session. Thank you so much for joining and we'll meet the next one. Bye bye and take care.